नीतीश जी, नीतीश जी कहाँ चले गए यार? नीतीश जी का तो बंद हो गया। राजीव फोन कर यार एक बार उन्हें। ज्वाइन हो गए। Nitesh sir has rejoined. He's just connecting to his audio. ये मैडम क्या इशू आ रहा? सुधीर जी भी अभी आए थे, चले गए। नीतीश सर का आपको ऑडियो आइकॉन नहीं आ रहा था, आ गया। This is their connectivity issue. नहीं, it is on the part of नीतीश जी. So ये automatic disconnected and connected. I think there is some problem. Sudhir ji also want to connect it, but he got disconnected. So, Nitish ji, can we start the webinar? Nitish ji. Nitish ji, आपके Nitesh sir, you are on hold right now. तो ऑडियो सही से नहीं आ रही उनकी क्लियर कुछ भी। उन्होंने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया हुआ है। नितेश सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को ना। मैं एक बार नीतीश जी को फोन करता हूँ, बात करता हूँ उनसे। नीतीश जी, एक बार आप अपना माइक ऑन करिए। आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं आपको कॉल ही कर रहा था। अब कैन वी स्टार्ट द वेबिनार सर? ठीक है सर। ठीक है। So welcome all participants in today's webinar, which is to be taken by a very renowned speaker, CA Nitish Chugh ji. I am giving brief profile of Nitish Chugh ji. Nitish Chugh having experience of more than 15 years in the field of assurance field and has been instrumental in designing the quality process. Currently partner with Hands and Associates, and he is expert in valuation, infrastructure sector, NBFCs and technology driven entities. He is also empaneled as a reviewer under peer review board, empaneled under independent director data bank base, and chairman of Delhi chapter Emerging Group, Emerging Business Chamber of Commerce. And I think Nitish bhai has expert in companies. We all know he's today is taking webinar on companies. So I welcome Nitish ji in our study circle and request him to share his knowledge with all the participants. Thank you, Hemanji. Thank you for giving me this opportunity. I thank you and your deputy convener Sudhir ji. Before we have already, wasted more than 10-15 minutes on this technical issue. Straight away jump to the technical session. So is my PPT visible? PPT visible, Hemanji? Yes, your PPT sir is visible, but I think there are some net issue from your side. Your voice is breaking.
मोबाइल से कनेक्ट करूंगा सर एक बार? नहीं अब ठीक है सर, अब ठीक है, पहले बीच में हुई थी, अब इट इज पीपीटी भी विजिबल है। अभी आपने बोला था तो ठीक है सर, अगर कोई इशू आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यू कैन ठीक है, आप मेरे को बीच बीच में बताते रहिएगा सर। ठीक है सर, ठीक है। मैं वीडियो ऑफ कर दूं अपनी? आप देख लीजिए सर, अगर वीडियो ऑफ आपको करना चाहते हो उससे ज्यादा बेटर रहेगा तो कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। So, sir, the topic of the day is amendments in Schedule 3 to the Companies Act. This was issued on 24th of March 2021 and is applicable for financial year that is ending 31st March 22. Basically, 1st April 21 के बाद जितने भी financial year start हुए हैं उनके लिए ये applicable है। ये मेरा brief profile है, which Hemant has already taken care of. So, we'll be discussing today certain basic concepts and then the amendment to Schedule 3 relating to balance sheet items and profit and loss items, right? तो पहले कुछ basic concepts हैं, उसके ऊपर थोड़ी deliberation करते हैं. General instruction for preparation of balance sheet. First basic concept is relating to operating cycle. What is an operating cycle? So an operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash or cash equivalent. Basically, आपका raw material procurement plus work in progress, time taken in work in progress, and to convert it into finished goods, then the ultimate sale, then the receivables realized into cash. जो पूरा time इस process में लगता है, that is known as the operating cycle, right? Where the normal operating cycle cannot be identified, जहां पर operating cycle आप define नहीं कर पा रहे due to any XYZ circumstances, so it is assumed to have a duration of 12 months. जहां पर assume नहीं कर पा रहे define, वहां पर आपका 12 महीने का हो जाएगा operating cycle, right? एक फटाफट एक क्विज कर लेते हैं. Can operating cycle be more than 12 months? You can reply in the chat box. क्या 12 महीने से ज्यादा का हो सकता है ऑपरेटिंग साइकिल? एनी आंसर्स? नीतीश सर, आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, तो आप एक बार ना दोबारा एग्जिट करके लॉगिन कीजिए सर। मैं एग्जिट करके लॉगिन करूं? अच्छा, बीच में आती है, बीच में ब्रेक हो जाती है सर। मैं एक बार दोबारा लॉगिन करता हूं सर। अभी क्लियर आ रही है सर आवाज। पता नहीं कुछ इशू, मेरे को लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करता हूं। अरे राजीव जी, अब जैसे सर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, हम सबको इसमें पैनलिस्ट में डाल के अलाउ नहीं कर सकते बोलने के लिए? कई बार लोग चैट में लिखते नहीं है। पैनलिस्ट में सबको कैसे कर सकते हैं? If someone wants to answer, they can raise hand and then I could promote them to panelist. अगर किसी को आंसर करना है, आप अपना हैंड रेज कर दीजिए। You are having an option hand raise, attendees के पास आ रहा होगा। मैडम आप देखते रहना। हाँ जी, ओके। सर अब आवाज क्लियर है क्या थोड़ी सी? हाँ, आप क्लियर है सर, आप क्लियर है। क्लियर है, चलो let us move back to the presentation. So we were discussing, can operating cycle be more than 12 months?
Anyone would like to answer in the chat box? There are 2 or 3 answer in the chat box, sir. Okay, बताएंगे सर एक बारी? कोई नहीं आंसर? सर यस, विजय अग्रवाल जी ने भी यस बोला है। विजय अग्रवाल जी का है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सर विजय अग्रवाल जी ने। जहां पर आपका ऑपरेटिंग साइकिल हमने अभी देखा कि कैश रियलाइजेशन जो है वो 12 महीने से ज्यादा है, वहां पे ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी को डेवलप होने में टाइम लगता है और उसका जो सेल है वो एटलीस्ट 3 इयर्स 4 इयर्स तक चला जाता है उनका पीरियड। तो वहां पे ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ कंपनी हैज मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल? क्या एक कंपनी का एक ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा हो सकता है? इसका भी आंसर यस है सर। द रीजन बीइंग, अगर कोई कंपनी एक से ज्यादा सेगमेंट में ऑपरेट करती है तो उसके अगर कोई कंपनी एक से ज्यादा सेगमेंट में ऑपरेट करती है तो operating cycle can be different and it can have, a company can have more than 1 operating cycle. The third question is whether operating cycle needs to be disclosed in notes to accounts. Any answers for this? Yes, it is not mandatory to disclose it in the notes to account, but it is always advisable. आप इसको notes to accounts में disclose कीजिए for better understanding of the financial statements. अब देखते हैं सर, व्हाट इज अ करंट एसेट? करंट एसेट क्या होता है? An asset shall be classified as current when it is expected to be realized. The term is expected to be realized in or is intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle. अगर कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में या तो कंज्यूम हो या फिर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज हो तो वो करंट एसेट होता है। सेकंड लिंक कहता है इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। प्राइमरली ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए आपने होल्ड किया हुआ हो उसको भी आप करंट एसेट क्वालिफाई करेंगे। थर्ड वन, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड within 12 months after the reporting date. An asset which is expected to be realized in within next 12 months is always a current asset. Last one, it is cash or cash equivalent. कैश और कैश इक्विवेलेंट होगा तो भी करंट एसेट होगा unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for 12 months. कई कंट्रीज से आपको फंड्स रिपैट्रिएट करवाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। आप 12 महीने तक उस फंड्स को यूज नहीं कर सकते। बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है बट यू कैन नॉट यूटिलाइज इट, तो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होंगे। सो दैट विल नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ करंट एसेट्स, राइट? ऑल अदर एसेट्स शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। इसके अलावा कोई भी एसेट होगा वो नॉन करंट की कैटेगरी में कवर हो जाएगा। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज की बात करें अगर हम, a liability shall be classified as current when it satisfies any of the following criteria. It is expected to be settled in the company's normal operating cycle. Second one, it is held primarily for the purpose of being traded. Third one, it is due to be settled within 12 months after the reporting date. The word is due to be settled. And the last one, the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date. कंपनी के पास कोई ऐसा अनकंडीशनल राइट नहीं है लायबिलिटी को डेफर करने का फॉर at least 12 months after the reporting date. In that case, it is also a current liability. Last line क्या है सर? Terms of a liability that could at the option of the counterparty results in its settlement by issue of equity instrument do not affect its classification. That means अगर आपके पास कोई convertible liabilities है, कोई convertible debentures है, convertible debt है, या कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है which is convertible into equity instruments, तो उससे उसकी liability classification के ऊपर कोई impact नहीं होगा। वो ऊपर के 4 क्राइटेरिया के बेस पे ही डिफाइन होगा। इसके अलावा जो भी लायबिलिटीज आपकी बच गई वो सारी की सारी क्या होंगी? नॉन करंट लायबिलिटीज। चलिए सर, एक और क्वेरी आ गई है फटाफट, एक और क्वेश्चन टाइम आ गया है। क्या स्लो मूविंग स्टॉक जो है, हाउ शुड अ स्लो मूविंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स बी क्लासिफाइड व्हेन इट विल neither be consumed within the normal operating cycle nor be sold within 12 months from the balance sheet date? ना तो 12 महीने में वो कंज्यूम होगा, ना ही वो सेल होगा फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो क्या वो करंट होगा या नॉन करंट होगा? इसका आंसर प्लीज कीजिएगा, सारे के सारे ट्राई कीजिएगा। प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स।
I hope my voice is audible. Yes, Nitish bhai, audible. Okay. Please reply in the chat box. If the stores and spares, they are neither be consumed within the next 12 months or not to be sold within the next 12 months, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? क्या वो करंट होगा या नॉन करंट होगा? चलिए मैं बता देता हूं सर, इसका आंसर है करंट होगा। द रीजन बीइंग, हमने पिछली स्लाइड में ही देखा, इट इज primarily for the purpose of being traded or it is expected. तो अगर हमने ट्रेडिंग पर्पस के लिए ही रखा हुआ है या कंजम्पशन के लिए रखा हुआ है, तो इट विल ऑलवेज बी अ करंट एसेट, इट विल नॉट बी नॉन करंट एसेट। वो यूज होगा या नहीं होगा उसके बेस पे डिपेंड नहीं करता। स्टॉक्स जो है दैट विल ऑलवेज बी योर करंट एसेट्स। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। इसका आंसर बताइए। मेरे पास कन्वर्टेबल इक्विटी प्रेफरेंस, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर विच इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, तो उससे क्या वो करंट या नॉन करंट डिफाइन होगा? Incoming call from Sven. ये होगा सर नॉन करंट। द रीजन बीइंग कि मैंने जब इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं वो नॉन करंट ही है। कन्वर्ट बेस पे इट विल नॉट बी डिसाइडेड कि वो करंट होगा या नॉन करंट होगा। इफ द इंटेंशन इज टू होल्ड इट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, इट इज ऑलवेज योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। चलिए सर अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं आज के। तो आज का मेन टॉपिक है इट इज शेड्यूल 3, 24th of March 2021 को इश्यू हुआ था। There are certain amendments in all the three divisions. It is divided into 3 parts. Division 1 is for those companies whose financial statements are required to comply with companies accounting standard rules. That means कि IGAAP के लिए है। Division 2 जो है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनी फॉलो करती हैं उनके लिए है, इंड AS के लिए है। और थर्ड वन इज फॉर NBFCs जिनके ऊपर इंड AS एप्लीकेबल है। प्राइमरली हम आज जो है इस टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि ये ज्यादा यूज होता है। इसकी पहले एक एग्जीक्यूटिव समरी है जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर मोर ओवरसाइट ऑन गवर्नेंस। गवर्नेंस से रिलेटेड क्या एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आए हैं, वी विल स्टडी ऑल दीज इन डिटेल। फर्स्ट वन इज द प्रमोटर शेयर होल्डिंग, सेकंड वन इज द MSME डिस्क्लोजर, third one is registration and satisfaction of charges, fourth one is relating to the layers of subsidiaries, fifth one is relating to scheme of arrangement, compliances with scheme of arrangement, then working capital reconciliation and related to revaluations. Second limb में सर हमारा financial discipline से related mandatory disclosure of ratios, aging of trade receivable, trade payables, CWIP aging and other disclosures, transaction not recorded in books of accounts, undisclosed income, disclosure relating to CSR. Third limb is relating to money laundering, early signals relating to money laundering. It could be dealing with companies whose name has been struck off, benami transactions, details of immovable property, willful defaulters, then loans given or loans received for transfer to other entities, and use of borrowed funds, loans and advances to promoter, director, relatives, and dealings in crypto assets or cryptocurrencies. The last one is relating to minor changes. It could be related to rounding off or change in the nomenclature, change in the total income from total revenue, change in the head of PPEs from tangible assets. तो चलिए सर डिटेल में करते हैं। फर्स्ट थिंग प्रमोटर शेयर होल्डिंग। This is the additional disclosure requirement. The financial statement shall contain a note on share capital which shall mention the following details of the shareholding of the promoters. Promoter की shareholding जो है वो disclose करनी है along with the changes. Changes कौन से? During the year आप जो changes हुए हैं उसको हमें disclose करना है financial statement में। ठीक है सर, पहले क्या disclose करना है? Promoter का नाम, number of shares held by the promoter and what is the percentage of total shares plus the percentage change during the year. इसमें प्रमोटर की डेफिनेशन हमें कहां से पिक करनी है? एज पर द कंपनीज एक्ट, नॉट एज पर सेबी। कंपनीज एक्ट में जो प्रमोटर की डेफिनेशन है उसी को कंसीडर करते हुए हमें यहाँ पे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करनी है।
डिटेल्स शैल बी गिवन फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट। नंबर ऑफ शेयर्स आपको इक्विटी, प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जितने भी आपके टाइप ऑफ क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं, हर शेयर, हर क्लास का आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है, जिन जिन प्रमोटर्स ने वो शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखी है, राइट। परसेंटेज चेंज जो हमें कंप्यूट करना है, थर्ड वाला, ये वाला जो लिम्ब है, परसेंटेज चेंज जो ड्यूरिंग द ईयर हमें कैलकुलेट करना है, वो लास्ट ईयर से कंपेयर करना है। लेकिन अगर कोई शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर इश्यू हुए हैं, तो फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू परसेंटेज शेयर होल्डिंग को कंसिडर करना है और यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 February 2022 को शेयर्स इशू करे, राइट। उस दिन प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो थी, उस दिन जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग थी वो 90% थी, बट एज ऑन 31 मार्च प्रमोटर शेयर होल्डिंग हैज चेंज, वो 80% हो गए हैं। तो आपको यहाँ पर विद फ्रॉम दी डेट ऑफ इशू से कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है, 10% हुआ है, राइट। अगर मल्टीपल चेंजेस हैं तो फर्स्ट डे और लास्ट डे का परसेंटेज चेंज आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। क्लियर है सर? इसमें कोई इशू तो नहीं है? आप अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इट इन दी चैट बॉक्स, और क्वेश्चन एंड आंसर जो विंडो है उसमें आप कर सकते हैं, राइट। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, राइट। The next change is relating to aging. Aging हमें किसकी दिखानी है? Trade payable. The note on trade payable due for payment by the company shall consist of an aging schedule with the head trade payable due for payment. Trade payable due for payment के नाम से आपको aging देनी है, जिसमें आपको MSME का डिस्क्लोजर देना है, डिस्प्यूटेड MSME का डिस्क्लोजर देने हैं, और अदर्स का डिस्क्लोजर देना है, इंक्लूडिंग डिस्प्यूटेड अदर्स। इसमें एजिंग में क्या क्या दिखाना है आपको? Amount due for payment which is less than 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, and more than 3 years. ठीक है सर? Similar information shall be given where no due date of payment is specified. जहाँ पे due date payment की specify नहीं है, वो उसको भी आपको disclose करना है from the date of transaction. Right? Transaction क्या होगी? From the date of, या तो billing होगी, या बिल रिसीट होगी, या फिर आपने अगर बिल रिसीव नहीं हुआ है तो कोई सर्विसेज रिसीव कर लिए, गुड्स रिसीव कर लिया, उस डेट से आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को कंसीडर करके ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को मीट करना है, राइट। एनी डाउट इन दिस? माइंड में कुछ आ रहा है कि ये डिस्क्लोजर क्यों मांगा गया है? कोई किसी तरीके की कोई क्वेरी? अभी हमारे जितने भी आईबीसी में केसेस जाते हैं ना, तो सबसे पहला जो रिप्लाई हम फाइल करते हैं वो ये रिप्लाई फाइल करते हैं कि ये हमारे जो क्रेडिटर्स हैं ये तो डिस्प्यूटेड है, इसलिए हम इसको पे नहीं करेंगे और ये आईबीसी में कवर नहीं हो पाएगा। नाउ दैट स्टैंड कैन बी मेड क्लियर फ्रॉम दिस। अगर आपने उसको डिस्प्यूटेड में दिखा रखा है देन ओनली इट इज डिस्प्यूटेड, अदरवाइज आपने अगर उसको एक्सेप्ट कर रखा है लायबिलिटी को, तो आप ये आईबीसी में रिफ्यूट नहीं कर सकते कि जो हमारे ट्रेड पेबल्स हैं दीज आर कवर्ड अंडर डिस्प्यूटेड ड्यूज। वहां से आपका जो क्लेम है वो कोलेट किया जाएगा और वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। दिस विल प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द अथॉरिटीज। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल के लिए भी आपको सेम ये नोट देना है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और करंट एसेट्स के लिए भी। इसमें हमें क्या डिस्क्लोज करना है? अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर गुड, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर डाउटफुल, disputed trade receivable considered good and disputed trade receivable considered doubtful। और एजिंग के विंडो में क्या क्या दिखाना है आप देखेंगे, नोट करेंगे कि ट्रेड पेबल में तो लेस देन 1 ईयर दिखाना था, बट ट्रेड रिसीवेबल में लेस देन 6 months एंड 6 months to 1 year को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, 1 to 2 years, 2 to 3 years and more than 3 years, right? Similar information shall be given where no due date of payment is specified. In that case, disclosure shall be from the date of transaction. Date of transaction से आपको disclose करना है कि अमाउंट हमारा कब से रिसीवेबल है, अगर आपने कोई ड्यू डेट डिसाइड नहीं की है, राइट। सिमिलरली
अनबिल्ड ड्यूज शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अनबिल्ड ड्यूज कौन से होते हैं? आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, आपने गुड सेल कर दिए, लेकिन उसकी बिलिंग नहीं हुई है अभी। जब आप बिल करेंगे, आप अपनी बुक्स में अक्रूड इनकम बुक कर लेते हैं, उसकी भी आपको एजिंग यहाँ पर एज ए डिस्क्लोज करनी है अंडर द हेड दिस ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट। नेक्स्ट आता है सर हमारा जो मेजर चेंज है, दैट इज इन द शेड्यूल ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर यू हैव टू गिव द एजिंग शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस एंड प्रोजेक्ट्स टेम्परेरी सस्पेंडेड। एजिंग कैसे देनी है? लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर्स एंड मोर देन 3 ईयर्स। जो आपका टोटल है वो आपके CWIP से मैच होगा बैलेंस शीट में। इस एजिंग का क्या पर्पस है सर? आपने देखा होगा जितने भी हमारे IBC में केसेस गए हैं, जो इनिशियल लेवल पे 12 केसेस गए थे, उनमें बहुत सारे केसेस में आपको मिलेगा कि CWIP जो है वो huge amounts of CWIP is there, and in one of the case it has been noticed कि एक पावर प्लांट था जो पिछले 3 साल से ट्रायल रन में चल रहा था। 3 साल तक दिस पावर प्लांट वाज इन ट्रायल रन, क्योंकि कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं थी फाइनेंशियल्स में, सो इट वाज कवर्ड अंडर द कार्पेट। अब जब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आएगी तो मैनेजमेंट और ऑडिटर दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसको चेक करने की और डिस्क्लोज करने की। होगा कि आप एटलीस्ट ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट क्यों किया जाए। इट विल गिव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लस प्रोजेक्ट्स विच आर टेम्परेरली सस्पेंडेड, जो टेम्परेरली सस्पेंड हो चुके हैं और उसके बावजूद इस साल से पुराने हैं, तो व्हाई नॉट प्रोविजन शैल बी मेड अगेंस्ट द सेम? हाउ इज इट, यू नो, it is still considered as a good asset in the financial state. This will give a clear understanding to the reader of the financial statement. Similarly, एक CWIP में आपको जो एजिंग है उसमें आपको एक एडिशनल डिस्क्लोजर देना है और has exceeded its cost compared to the original plan. जहां पे टाइम या कॉस्ट ओवररन है, उन प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्ट वाइज डिटेल आपको देनी है CWIP शेड्यूल में। अंडर द एजिंग लेस देन 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3 एंड मोर देन 3 इयर्स। प्रोजेक्ट वाइज आपको देनी है हर प्रोजेक्ट की, चाहे वो प्रोजेक्ट सस्पेंडेड है, चाहे वो प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है, आपको सबकी डिटेल्स देनी है। लेकिन प्रोजेक्ट जो सस्पेंडेड है उनकी सेपरेटली देनी है और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उनकी सेपरेटली देनी है। प्रोजेक्ट आपने एक पावर प्लांट लगाया, पावर प्लांट जो है उसकी कॉस्ट आपने डिसाइड करी कि 100 CR का होगा, बट इट हैज एक्सीडेड इट्स कॉस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल प्लान। तो अगर वो ओरिजिनल प्लान से एक्सीड कर चुकी है उसकी कॉस्ट, तो आपको उसको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। या फिर आपने कहा था कि 18 महीने में लग जाएगा, लेकिन ऑलरेडी 24 महीने हो चुके हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल इट इज इन द CWIP कंप्लीशन अंडर CWIP, तो आपको उसको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो एक तो मॉनेटरी चेक हो गया एजिंग के वाइज, और टाइम एंड कॉस्ट ओवररन अगर होता है तो उसका सेपरेट एजिंग आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। बहुत ही टीडियस वर्क होगा, बट एज एन ऑडिटर यू हैव टू मेक श्योर द कंपनीज आर डूइंग इट एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द फाइनेंशियल्स। जो फिगर्स यहाँ पे दी हैं दैट मैचेस विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई डाउट हो इसमें? नेक्स्ट आता है सर इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट। जो एजिंग हमने CWIP में दी, जो एजिंग हमने टाइम एंड कॉस्ट ओवररन की CWIP में दी, दैट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट कौन से हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, और या फिर कोई प्रोटोटाइप हो सकता है। ये सारे के सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में आते हैं। अभी हम सब कुछ CWIP में डिस्क्लोज कर देते हैं। टेक्निकली दीज आर
intangible assets under development. Similar disclosure requirement is there as जो हमने CWIP में देखा. Projects in progress and temporarily suspended projects से related जो आपको aging है वो देनी है. Total जो है वो balance sheet का match करेगा CWIP का इस schedule के साथ. और अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर जहां पर टाइम एंड कॉस्ट ओवररन हो चुका है तो भी आपको डिस्क्लोजर्स देने हैं. एक क्वेरी इसमें निकल के आती है कि टाइम एंड कॉस्ट जो है वो ओवररन हो गई थी, लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मीटिंग के अंदर जो रिवाइज कॉस्ट है उसको एक्सेप्ट कर दिया, अप्रूव कर दिया. ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव तो करेंगे ही, देयर इज नो अदर ऑप्शन. अगर अप्रूव नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होगा. लेकिन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तब भी आपको देनी पड़ेगी बिकॉज वी हैव टू कंपेयर इट विद द ओरिजिनल प्लान. अगर आप अपडेटेड प्लान से ही उसको कंपेयर करेंगे तो कभी भी इस डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि सारे के सारे प्रोजेक्ट तो अप्रूव हो ही जाते हैं, चाहे वो टाइम ओवररन हो या कॉस्ट ओवररन हो. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो हर चीज को अप्रूव करते ही है. इवन इन ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है पीएसयू ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जहां पर प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होता है, तो वो कहते हैं कि हमारी मैनेजमेंट ने जो है इसको अप्रूव कर दिया है तो अब टाइम एंड कॉस्ट ओवररन नहीं. मैनेजमेंट तो अप्रूव करेगी ही करेगी, जो ओरिजिनल प्लान से वेरिएशंस आई हैं उसके बेस पे हमारे को यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है. ठीक है सर. और प्रोजेक्ट वाइज देनी है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की, जहां पर एक्टिविटी सस्पेंड हो रखी है उनकी सेपरेटली देनी है. एनी डाउट इन दिस शेड्यूल? सर आवाज तो क्लियर है ना मेरी? ठीक है सर, थैंक यू. नेक्स्ट इज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स. उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि कारों में क्या चेंजेस आए हैं. आपको पता होगा कि कारो 2020 जो है वो करंट ईयर से एप्लीकेबल है. कारों के अंदर भी देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस. तो कारों में देखते हैं कारों में हमें ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है. Whether the company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative details and situation of PPE. ये पहले भी डिस्क्लोज करते थे, अभी भी करना है. Whether the company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets. Intangible assets से related कारों में हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी होती थी अभी तक, बट अब कारों के अंदर भी हमें रिपोर्टिंग करनी है. प्रॉपर रिकॉर्ड्स क्या हो सकते हैं सर? अगर कोई प्रोटोटाइप है तो प्रोटोटाइप की लोकेशन क्या है. सॉफ्टवेयर्स हैं तो सॉफ्टवेयर की लोकेशंस कहाँ, सॉफ्टवेयर कौन कौन सी मशीन्स में है, कौन कौन सी डिवाइसेस में है, कौन कौन से मशीन मैन हेल्ड डिवाइसेस में है, कौन कौन सी सर्वर्स पर है. राइट. सिमिलरली कोई रॉयल्टीज हैं या कोई टेक्निकल नो हाउ है तो उनके एग्रीमेंट्स जो हैं उनकी लोकेशन एंड जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ पर. Whether these PPE have been physically verified by the management at reasonable intervals where any material discrepancies were noted on such verification. If so, whether the same has been properly dealt with in the books of accounts. ये हमारा same clause है, इसमें कोई issue नहीं है. Whether the title deeds of all MML properties disclosed in the financial statements are held in the name of the company. If not, provide the details thereof in the specified format provided. अगर आपके टाइटल डीड्स जो कंपनी के पास हैं वो कंपनी के नाम पे नहीं है रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट कुड बी लैंड और बिल्डिंग, तो आपको स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर डिटेल देनी है. पहले कोई फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं था, अब फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया है कारों के. नेक्स्ट इज वेदर द कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अगर रीवैल्यूएशन किया है या फिर राइट ऑफ यूज एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया है. राइट टू यूज एसेट्स हमारे इंड AS 116 में आते हैं, इंड AS 116 से रिकवर निकलते हैं. अगर आपने उसको कुछ रीवैल्यूएशन किया है या फिर इंटेंजिबल एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया है या सब और बोथ ड्यूरिंग द ईयर, वेदर द रीवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. क्या आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन ली है? यस. Specify the amount of change if the change is 10% or more in the aggregate. अगर 10% से ज्यादा अप या डाउन है रिवैल्यूएशन तो आपको अमाउंट कारों के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा. पहले हम कारों में कोई ऐसी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा.
Next is whether the proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any Benami property under the Benami Transaction Prohibition Act and rules made thereunder. If so, whether the company has appropriately disclosed the details in the financial statements. अगर बेनामी से रिलेटेड कुछ भी आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या कोई भी आप you are an abettor to the under this act, तो आपको the same has been whether the same has been disclosed in the financial statements or not, ये आपको कारो में रिपोर्ट करना है. अब आप देखिए सर, ये कारो 2 साल पहले आया था जो अमेंडमेंट्स आई थी कारो में, और ये ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की थी कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि बेनामी एक्ट से रिलेटेड आपने कंपनी ने सफिशिएंट डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए, जबकि कंपनी के ऊपर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको डिस्क्लोज करे. राइट. सो कंपनी के ऊपर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि कंपनी जो है उसको रिपोर्ट करे. इसीलिए सिमिलर अमेंडमेंट शेड्यूल 3 के अंदर वो लेके आए हैं अभी, जो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे. अभी हम देखेंगे इसमें आगे चल के कि सिमिलर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इज देयर इन शेड्यूल 3. अब ऑडिटर को शेड्यूल 3 के बेस पे देखना है कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोजर दिया या नहीं दिया. अगर नहीं दिया तो कारों में रिपोर्ट करना. राइट. देखिए सर, ये फॉर्मेट जो है ये टाइटल डीड नहीं होने का ये फॉर्मेट है, ये शेड्यूल 3 में दिया है उन्होंने. इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, तो आपको क्या डिस्क्लोज करना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो डिस्क्लोज करना है. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड AS 40 में निकलता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और हमारा आई गैप 13 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्लासिफाई होता है. लैंड एंड बिल्डिंग अगर कोई है, आपने रेंटल पर्पसेस के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होल्ड की हुई है, that classifies as investment property. उसमें अगर टाइटल डीड कंपनी के नाम पे नहीं है तो इस टेबल के अंदर डिस्क्लोजर देना है. PP is retired from active use and held for disposal, Ind AS 105 के अंदर कवर होता है. इसके अलावा और किसी भी तरीके के एसेट्स हैं जो कि इमूवेबल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, और कंपनी के नाम पर नहीं है, तो आपको क्या डिस्क्लोज करना है? डिस्क्रिप्शन, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू अमाउंट, टाइटल डीड किसके नाम पर है. क्या होता है सर, नॉर्मली पहले क्या होता था, जो भी हमारी पार्टनरशिप एंटिटीज होती थी वो लैंड एंड बिल्डिंग पार्टनरशिप के नाम पे तो परचेज कर नहीं सकते इंडिया में, तो इंडिविजुअल पार्टनर्स के नाम पे होती थी. वो जब कन्वर्ट होती थी कंपनी में तो टाइटल डीड पार्टनर्स के नाम पे ही रह जाती थी, और प्रॉपर्टी जो है वो कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाती थी. राइट. ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया. फिर बाद में जब IBC में कंपनी गई तो पता चला कि टाइटल डीड तो कंपनी के नाम पे है ही नहीं, आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते. सो नंबर ऑफ इश्यूज. तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी कंपनी मर्ज होती है, न्यू कंपनी फॉर्म होती है, न्यू कंपनी में 2-3 कंपनी मर्ज होती हैं, तो जो टाइटल डीड्स हैं ओल्ड प्रॉपर्टीज के, वो ओल्ड कंपनी के नेम पे ही रह जाते हैं, वो चेंज नहीं होते. स्टैम्प ड्यूटी की वजह से कह लो या और किसी रीजन की वजह से कह लो, कोर्ट ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि जो पुरानी एंटिटी है जो उसके जो टाइटल डीड्स हैं डेट वेस्ट या कोई रीजन है तो वो आपको डिस्क्लोज करना है. यहाँ पे रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ पे करना. अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी डिस्क्लोज करना है.
So I was on this title deed, got disconnected due to some network issue. So we'll continue from here only. If the property is held in the name of the promoter or director or relative of any director, then this relationship and this fact is also required to be disclosed in this particular format, right? बेनामी का हमने अभी डिस्कशन किया था. बेनामी में कारों में हमने कहा था कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. अब देखिए शेड्यूल 3 में रिक्वायरमेंट आई है. कहाँ पे क्या क्या डिस्क्लोज करना है. वेयर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, द कंपनी शैल डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ सच प्रॉपर्टी जो बेनामी प्रॉपर्टी है, और इंक्लूडिंग द ईयर ऑफ एक्विजिशन, कौन से साल में एक्विजिशन किया उसका, अमाउंट कितना है, बेनिफिशियरी कौन है उस प्रॉपर्टी का. If property is in the books, then reference to the item in the balance sheet. अगर बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स में है तो उसकी आइटम रेफरेंस दीजिए बैलेंस शीट के अंदर. अगर नहीं है तो ये फैक्ट हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि बुक्स के अंदर नहीं है. Where there are proceeding against the company under this law as an abettor of the transaction or as the transferor, then the details shall be provided. अगर as an abettor हो है या ट्रांसफर है, then the details shall be provided. इसके अलावा नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स क्या है, स्टेटस क्या है आज की डेट में, और कंपनी का व्यू क्या है, ये हमें कैसे पता चल सकता है. इसके लिए हमें एक लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा. या तो जो लॉयर इसको हैंडल कर रहा है उससे ओपिनियन ले लें, या फिर इन हाउस जो आपकी टैक्स जो लॉ टीम है उससे आप ओपिनियन ले सकते हैं. क्लाइंट की जो इन हाउस लॉ टीम होती है, लीगल मैटर्स जो हैंडल करती है, उनसे आप ओपिनियन ले सकते हैं. या फिर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले सकते हैं. कंपनी ने जो यहाँ पर डिस्क्लोज किया है वही सेम आप एमएलएल में ले लीजिए. ठीक है सर, एनी डाउट इन दिस. अबेटर, अबेटर मींस जिसने की ट्रांजैक्शन को अबेटर मींस आप ये समझ लीजिए कि मिडलमैन हो गया, जो बेनामी ट्रांजैक्शन में जिसका रोल था, जिसने ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट करी या कंक्लूड करी, जो मिडलमैन हो गया, दैट इज नोन एज द अबेटर इन दिस केस. एक होता है ट्रांसफरर, एक होता है ट्रांसफरी, और एक होता है अबेटर. अबेटर मींस जिसने ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया या ट्रांजैक्शन की पूरी प्लानिंग करी, दैट इज नोन एज द अबेटर. बेनामी लॉ के अंदर अबेटर के ऊपर भी एक्शन लिया जाता है, राइट. नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड. आपने कारों में रिपोर्ट करना है, कंपनी को भी शेड्यूल 3 के अंदर अब रिपोर्ट करना है. द नोट ऑन पीपीई shall additionally disclose the amount of change due to revaluation. Amount of change due to revaluation if the change is 10% or more. अगर 10% से ज्यादा है तो आपको अमाउंट डिस्क्लोज करना है नोट टू अकाउंट्स में in the aggregate of the net carrying value of each class. हर क्लास में आपको ये डिस्क्लोज करना है. Similarly for intangible assets also, अगर 10% से ज्यादा है तो आपको डिस्क्लोज करना है. Verify the valuation is from registered value or was used by the company as report. ऑडिटर को देखना है कि वैल्यूएशन इज एज पर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, अदरवाइज आप इसको कारों में रिपोर्ट कीजिएगा. नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ टेंजिबल एसेट. ये जो वर्ड हम पहले टेंजिबल एसेट यूज करते थे, दिस हैज बीन रिप्लेस्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड अब आप फाइनेंशियल्स में इसी वर्ड को यूज करेंगे, ना कि टेंजिबल एसेट्स को. अभी तक बहुत इजी चल रहा था, अब एक डिफिकल्ट क्लॉज आ गया इन्वेंट्री से रिलेटेड. इन्वेंट्री में वी हैव टू डिस्क्लोज वेदर, सबसे पहले कारों की बात करते हैं. कारों 2020 में क्या चेंज आया, ये भी करंट ईयर से एप्लीकेबल है आपके ऊपर. वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल बाय द मैनेजमेंट. पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे. पहले हम डिस्क्लोज करते थे वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस्ड, ये हम पहले डिस्क्लोज करते थे, नहीं करना, ये हट चुका है. इसको नए कार क्या करना, क्या कहता है कारो, वेदर एनी डिस्क्रिपेंसीज ऑफ 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वर नोटिस एंड इफ सो. अगर ये जो मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज थी उसको 10% से रिप्लेस कर दिया, अगर 10% से ज्यादा है तो ही आपको रिपोर्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना. तो आपको क्या रिपोर्ट करना है, वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्टी डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट. ठीक है, पहले मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज वर्ड यूज करता था, अब रिवाइज कारों के अंदर
इट इज बीइंग डिफाइंड एज 10%, मटेरियलिटी को डिफाइन कर दिया है 10%। प्लस आपको क्या रिपोर्ट करना है, द कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज एप्रोप्रिएट। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार क्लॉज है हमारा कारों के अंदर, वी हैव टू रिपोर्ट, इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, हम सबको अंडरलाइन करेंगे। वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर, साल में कभी भी, ये फर्स्ट क्राइटेरिया, द कंपनी हैज बीन सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट। सेकंड पॉइंट इज सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स in excess of 5 crores. So excess of 5 crores is the third condition. In aggregate from banks or financial institution, aggregate from banks or financial institution, on the basis of security of current assets, on the basis of security of current assets, whether the quarterly statements, quarterly returns or statement filed by the company with such banks or financial institution are in agreement with the books of accounts or not. So this is the sixth condition, and seventh is the agreement with the books of accounts. तो सर कारों में क्या रिपोर्ट करना है, ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, साल के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कंपनी के पास 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ नहीं 5 करोड़ से ज्यादा की सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट है। सैंक्शन वर्ड इंपॉर्टेंट है, सैंक्शन को भी फोकस किया जाए, डिसबर्समेंट की बात नहीं कर रहा, यूटिलाइजेशन की बात नहीं कर रहा। अगर आपके पास सैंक्शन भी है वर्किंग कैपिटल लिमिट्स 5 करोड़ से ज्यादा, इन टोटलिटी, इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेस्ड अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, मतलब स्टॉक्स एंड रिसीवेबल्स के बेसिस पे अगर सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा है साल में कभी भी फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो कंपनी को क्या रिपोर्ट करना है, वेदर द क्वार्टरली रिटर्न, जो क्यूओएस स्टेटमेंट्स बैंक्स में फाइल करती हैं कंपनीज, they are in agreement with the books of accounts or not. So this is the point which made a very hue and cry in the market कि भाई हम कैसे ये चेक करेंगे और कैसे रिपोर्ट करेंगे, which is very very important. सर ये अभी फंड बेस की बात कर रहे हैं, because this is sanction working capital limits, अभी ये फंड बेस की बात कर रहे हैं। So इसमें जो ह्यू एंड क्राई मार्केट में बचा कि ये तो बुक से कभी टैली होती ही नहीं है। आप 25 मार्च को जो स्टॉक स्टेटमेंट बैंक को सबमिट करते हो और जो 31 मार्च को बैंक स्टेटमेंट सबमिट करते हो, उसमें तो जमीन और आसमान का फर्क होता है कि नहीं होता? अभी तक तो यही होता था प्रैक्टिकल सिनेरियो में, जो हम बैंक ऑडिट में पॉइंट रेज भी करके आते हैं, कई बार मैक्सिमम केसेस में हमारी यही ऑब्जर्वेशन होती है, जो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट कर रखी है 25 ऑफ मार्च को लास्ट ईयर, और बाद में जो सितंबर में बैलेंस शीट सबमिट करी थी, उसमें जमीन और आसमान का फर्क था, राइट? अब ऑडिटर को ये कारों के अंदर रिपोर्ट करना है सर, कि जो भी मैं मंथली स्टेटमेंट्स फाइल कर रहा हूँ, जो भी मंथली क्वार्टरली स्टेटमेंट्स और रिटर्न्स मैंने बैंक में फाइल करी हैं, वो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ टैली है, दे आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर नहीं तो हमें उसको रिपोर्ट करना है कारों में और डिटेल्स देनी है। अब हम कैसे करेंगे, उसके लिए उन्होंने कहा ठीक है, पहले हम कंपनीज के ऊपर भी लेके आते हैं। उन्होंने कंपनीज के लिए भी शेड्यूल 3 के अंदर अमेंडमेंट्स लेके आए। वेदर द कंपनी हैज बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट, it should disclose the following: whether quarterly returns or statement of current assets filed by the company with banks or financial institution are in agreement with the book of account. If not, summary of reconciliation and reason of material discrepancies, if any, to be adequately disclosed. अगर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ गया कि 25 मार्च को मैंने 100 करोड़ का स्टॉक दिया था और 31 मार्च को 20 करोड़ का ही रह गया, तो वो कंपनी कोई भी ऐसा नहीं करेगी। So this will act as a deterrent कि वो 25 मार्च को अपनी स्टॉक स्टेटमेंट सही फाइल करेगी बैंक में फॉर रिन्यूअल पर्पसेस या डीपी पर्पसेस, राइट? आप एक चीज नोट कीजिएगा कि शेड्यूल 3 में 5 करोड़ की कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन कारों में कह रहे हैं कि अगर सैंक्शन लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा है तो कंपनी को, तो ही वो एप्लीकेबल है कारों में रिपोर्टिंग, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं। लेकिन शेड्यूल 3 में 5 करोड़ की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके बेसिस 1 करोड़ की भी आपकी लिमिट है या 1 करोड़ की भी यूटिलाइजेशन है, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर।
CMA data and book debt submitted to by company needs to be certified by CA on quarterly basis. सर वो सर्टिफाई करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, वो कुछ बैंक्स जबरदस्ती सर्टिफाई करवाते हैं, लेकिन एज एन ऑडिटर आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली स्टैट्यूटरी ऑडिटर से वो सर्टिफाई कभी भी नहीं करवाते, वो अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफाइड करवाते हैं जितनी भी मैनेजमेंट होती है। अगर आप सर्टिफाई करते हो तो आप मत कीजिएगा, सर्टिफाई तभी कीजिएगा व्हेन इट इज इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट में लीड टू प्रॉब्लम लेटर ऑन। जितने भी सारे बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं वो इसी रीजन की वजह से हो रहे हैं कि स्टॉक जो है वो ओवरस्टेटेड होते हैं, डेटर स्टेटमेंट्स ओवरस्टेटेड होती हैं, लेस देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ में आपस में बहुत ही बकेट्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप अगर सर्टिफाई कर रहे हैं तो आप टैली कर लीजिएगा बुक से। एंड जनरली स्टैट्यूटरी ऑडिटर से वो सर्टिफाई नहीं करवाते, बहुत कम केसेस में करवाते हैं, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर से इसलिए सर्टिफाई नहीं करवाते क्योंकि वो देख के ही सर्टिफाई करता है। If your limit exceeds 5 crore or 10 crore, it is compulsory. If your limit exceeds 5 crore or 10 crore, it is compulsory. अच्छा, कुछ केसेस में होगा ये कंपल्सरी, बट मेरे ख्याल से स्टैट्यूटरी ऑडिटर से नहीं करवाते, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर बहुत टाइम ले लेता है इसको पूरा वेरीफाई करने में, वो बाहर से कहीं से भी जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी सर्टिफाई करवा लेते हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है सर, अपने जितने भी आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जहां पर 5 करोड़ एंड अबव की लिमिट्स हैं, आप उनको बता दीजिए कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा, अदरवाइज यू हैव टू रिपोर्ट इट इन दी कारो। क्योंकि जितने भी बैंक्स में फ्रॉड हो रहे थे वो बैंक्स के पास कोई चेक नहीं मिल रहा था कि इसको कैसे रोका जाए, तो उन्होंने ऑडिटर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट कर दी कि कंपनी अगर कुछ ऐसा करती है तो कंपनी के ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट इट इन दी कारो। ठीक है सर? No requirement from that. Yes, it is CA certified, right? Next is willful defaulter and use of funds. एक दो केसेस और दो रिक्वायरमेंट और आई हैं कारो के अंदर, वो हम देख लेते हैं एक बारी। Whether the company has defaulted in repayment of loan or other borrowings in the payment of interest thereon to any lender, if yes, the period and amount of default to be reported as per the table. ये पहले भी था, अब हमें रिपोर्ट करना है whether the company is a declared willful defaulter by any bank or financial institution or any other lender. Willful defaulter अगर कंपनी को डिक्लेयर कर दिया किसी बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी अदर लेंडर ने, तो दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन दी कारो। इसके अलावा एक हमारे कारो के अंदर दो क्लॉजेस थे। 2003 कारो जो अर्सवाइल कारो था 2003, उसके अंदर दो क्लॉजेस थे। Whether term loans were applied for the purpose for which the loans were obtained, if not, the amount of loans so diverted and the purpose of which it is used may be reported. ये क्लॉज रीइंट्रोड्यूस हुआ है, ये 2003 में था, कारो 2015 और कारो 2016, जब 2 साल में कारो रिवाइज हुआ था तब ये क्लॉज को रिमूव कर दिया था। नाउ इट हैज बीन रीइंट्रोड्यूस। तो अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है किसी पर्पस के लिए, आपने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर दी है, सो इट इज डाइवर्जन ऑफ लोन, आपको कारो के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? इट इज अ काइंड ऑफ फ्रॉड, क्योंकि जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है उस पर्पस के लिए आपने अप्लाई नहीं किया, सो इट इज चीटिंग दी बैंकर्स और आपको कारो में रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? Whether funds raised on short-term basis have been utilized for long-term purposes, if yes, the nature and amount to be indicated. अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन्स ले रखे हैं और उसको लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर लिया है, तो आपको नेचर और अमाउंट इंडिकेट करना पड़ेगा। ये क्लॉज भी 15 और 16 में कहीं खो गया था, 2020 में वापस आ गया है। ठीक है सर, मैं 2020 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कारो का जो नाम है, कारो जो रिवाइज हुआ था वो कारो 2020 है, बट वो अभी तक एप्लीकेबल नहीं हो पाया, 2 साल से डेफर होता जा रहा था, अब 2022 में फाइनली एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोज करना है। Where a company is declared willful defaulter by any bank or financial institution or any lender, the following shall be disclosed: date of declaration as willful defaulter,
डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट, अमाउंट एंड नेचर ऑफ डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है सर? विलफुल डिफॉल्टर हियर मींस अ पर्सन और एन इश्यूअर who or which is categorized as a willful defaulter, जो कैटेगराइज हो चुका हो willful defaulter by any bank or financial institution or consortium, therefore in accordance with the guidelines on willful defaulter issued by RBI. RBI हर साल गाइडलाइंस इशू करता है बेसिस ऑन द क्राइटेरिया फॉर व्हिच the banks or financial institution can declare the company as a willful defaulter or lender as a willful defaulter. Certain criteria are fixed, more or less हर साल सेम ही होते हैं, बट थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो उसके बेसिस पे अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देता है, कैटेगराइज कर देता है, तभी आपको ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देनी है, अदरवाइज नहीं। हो सकता है आपकी कंपनी विलफुल डिफॉल्टर के सारे पैरामीटर मीट कर रही हो, लेकिन उसको किसी ने कैटेगराइज नहीं किया, तो आपको डिस्क्लोजर एज अ विलफुल डिफॉल्टर नहीं देना। विलफुल डिफॉल्टर तभी देना है when it is being categorized as a willful defaulter by any bank or financial institution, right? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? बैंक एमआरएल ले सकते हैं या बैंक से कंफर्मेशन ले सकते हैं, जिन जिन बैंक से आपकी फंडिंग है कि बैंक ने इस कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं किया है, राइट? The next one is disclosure of utilization of borrowing, where the company has not used the borrowings from banks and financial institutions for the purpose for which it has taken at the balance sheet date, the company shall disclose the details of where they have been used. जो हमारा पिछला क्लॉज था, दो क्लॉजेस थे, लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म में यूज कर लिया या कहीं और डाइवर्जन कर दिया, शॉर्ट टर्म फंड्स लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए यूज कर दिए, उसको शेड्यूल 3 में एक ही जगह कवर कर दिया। जिस पर्पस के लिए लिया था अगर उसके लिए यूटिलाइज नहीं किया तो आपको डिस्क्लोज करना है। आपने लोन लिया था प्लांट एंड मशीनरी के लिए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी सब्सिडरी में, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपने वर्किंग कैपिटल ली थी स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल्स को कवर करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने पावर प्लांट में डाइवर्ट कर दिए फंड्स। तो ये सारे के सारे आपको डिस्क्लोजर जो हैं वो देने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। कोई डाउट अभी तक? Sir, if the person is not appearing in RBI list as willful defaulter but he is defaulter, then how to determine? Sir, जब तक बैंक उसको कैटेगराइज नहीं करेगा तब तक वो willful defaulter के लिस्ट में नहीं आएगा, तब तक आपको कोई डिस्क्लोजर नहीं करना। जब उसकी कैटेगराइजेशन हो जाएगी willful defaulter में, then only the disclosure requirement is there. इसके बाद आते हैं सर सॉल्वेंसी एंड रेशियोज के ऊपर। बहुत सारी रेशियोज को कंपलसरी कर दिया है। इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं पहले। आरओ में एक क्लॉज इंट्रोड्यूस हुआ सर, on the basis of financial ratios, aging and expected date of realization of financial assets and payment of financial liabilities plus other information accompanying the financial statement, the auditor's knowledge of the board of director and management plans, whether किसके बेसिस पे? फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज प्लस अदर इंफॉर्मेशन प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट प्लान्स के बेसिस पे ऑडिटर का ये ओपिनियन है, नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। कब? एज ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं, 31 मार्च को नहीं, अगर आप नवंबर में साइन कर रहे हैं तो एज ऑन नवंबर the company is capable of meeting its liabilities existing and the balance sheet date 31 मार्च को जो liabilities थी, the company is in position to meet all those liabilities which existed as on the date of balance sheet as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date। मतलब 31 मार्च को जो लायबिलिटीज थी कंपनी की, वो कंपनी उसको मीट कर लेगी जो भी अगले 12 महीने में ड्यू होगी। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें कब बतानी है? एज ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब जिस दिन मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा हूं उस डेट तक के सारे इवेंट्स को, सारे सर्कमस्टांसेस को कवर करने के बाद मुझे ये रिपोर्ट में क्लॉज के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है सर, कर सकते हैं हम, बड़ा इजी है।
कारों में लेके आ गए कि फाइनेंशियल रेशियोज निकालिए, एजिंग करिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कीजिए, फाइनेंशियल लायबिलिटीज। ये कंपनी के पास, ऑडिटर के पास इतनी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कैसे ऑडिटर कमेंट करेगा? ह्यू एंड क्राई मचा, शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट आई, फाइनेंशियल रेशियोज तो बोल दिए कि ये आपको इतनी फाइनेंशियल रेशियोज तो मिनिमम देनी है। करंट रेशियो कंपनी अपने नोट्स में डिस्क्लोज करेगी, डेट इक्विटी रेशियो डिस्क्लोज करेगी, डेट सर्विस कवरेज रेशियो डिस्क्लोज करेगी, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारे के सारे जितनी भी रेशियोज हैं, 12 रेशियोज, 11-12 कितनी है, 12 रेशियोज, ये सारी की सारी डिस्क्लोज करनी है कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। प्लस एजिंग आपने देख ली, CWIP की एजिंग, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट की एजिंग, ट्रेड पेबल्स की एजिंग, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की एक्सपेक्टेड डेट, प्लस पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज। इसके लिए आपको क्या लेना होगा? कंपनी से अगले 12 महीने की कैश फ्लो लेनी पड़ेगी, कौन कौन सी डेट को कौन कौन सी पेमेंट आ रही है, कौन कौन सी डेट को आपको पेमेंट करनी है। उसके बेसिस पे यू हैव टू रिपोर्ट इन द ऑडिट रिपोर्ट कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, कंपनी विल एबल टू मीट ऑल इट्स लायबिलिटी दैट इज कमिंग इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। बेसिकली गोइंग कंसर्न के ऊपर आपको कमेंट करना पड़ रहा है, कंसीडरिंग द events and circumstances that has happened from the balance sheet date and till the signing of the audit report। राइट है सर? बहुत ही डिफिकल्ट क्लॉज है, बहुत सोच समझ के इसके ऊपर आंसर करना है और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होगी इसके ऊपर। क्या क्या ले सकते हैं मैनेजमेंट से? प्लान फॉर रियलाइजेशन ऑफ रिसीवेबल एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स, डॉक्यूमेंटेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डॉक्यूमेंटेशन फॉर रिव्यू ऑफ लायबिलिटी पोजीशन that is payable within 1 year, and payment plans include specifically that all material events transaction post balance sheet date but before reporting date that could impact the paying capacity in the knowledge of the management or board has been communicated to the auditor। कोई भी ऐसा इवेंट अगर हुआ है तो वो उन्होंने, मैनेजमेंट ने ऑडिटर को एक्सप्लेन कर दिया है, कम्युनिकेट कर दिया है, एंड बेस्ड अपॉन दिस ओनली ऑडिटर हैज मेड अ कमेंट ऑन कार्ड। कोई डाउट इसमें सर? अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नो डाउट बढ़ गई है ऑडिटर्स की। नेक्स्ट देखिए सर, ये जो रेशियोज की बात हुई है, इन रेशियोज में अभी तक क्या होता था, बहुत सारी कंपनीज रेशियो डिस्क्लोज करती थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं करती थी, मैनेजमेंट एंड डिस्कशन एनालिसिस में करती थी। उसमें क्या होता था कि कंपनी अपनी मर्जी से न्यूमरेटर पिक करती थी, कंपनी अपने डिनोमिनेटर से अपनी मर्जी से डिनोमिनेटर पिक करती थी, और कुछ भी रेशियोज अपनी मर्जी से बना के देती। अब ऐसा नहीं होगा, कंपनी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि उन्होंने न्यूमरेटर में क्या कंसीडर किया है, करंट रेशियो में न्यूमरेटर को क्या कंसीडर किया है, डिनोमिनेटर में क्या कंसीडर किया है अबव रेशियो निकालने के लिए। प्लस आपको लास्ट ईयर की भी ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है। हमने जो भी डिस्कशन किया अभी तक, आपको करंट ईयर में तो डिस्क्लोजर देना ही देना है, आपको लास्ट ईयर का भी डिस्क्लोजर देना है। तो अगर आपके लास्ट ईयर के डिस्क्लोजर से आपकी करंट रेशियो 25% से ज्यादा चेंज होती है, तो आपको उसके रीजन भी देने हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि व्हाई करंट रेशियो हैज चेंज मोर देन 25% एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। ठीक है सर? Explanation shall be provided for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year। Any doubt sir? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? Now the issue is when you are disclosing inventory as non-reliable and debt as disputed and others and doing ratio analysis, your ratio analysis will go haywire। How to fine tune that? Fine tune नहीं करना सर, जो है वही disclose करना है। So if you are giving, if you want to include the disputed debtors in the current ratio, or if you want to exclude the same, आप न्यूमरेटर को डिफाइन करेंगे और उसमें इंक्लूड या एक्सक्लूड कर लीजिए अपने बेसिस पे। लेकिन बेसिस शैल रिमेन सेम एवरी ईयर। ऐसा नहीं है कि आज तो मैं डेटर, डिस्प्यूटेड डेटर्स को इंक्लूड कर लेता हूँ, कल मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। बेसिस हर साल सेम रहेगा, और अगर 25% से आप ज्यादा मूवमेंट करते हो तो आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि व्हाई इट हैज हैपेंड। राइट?
दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इज लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन। तो लोन्स और एडवांसेस तो है ही, एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स कौन कौन से हो सकते हैं? आपने अपनी किसी भी रिलेटेड एंटिटी को जिससे आप परचेजेस करते हो, हर साल 50 लाख की परचेजेस करते हो, लेकिन आपने उसको क्या किया, 10 करोड़ का एडवांस दे दिया कि मैं इसको परचेजेस के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता सर, आपने 20 साल का एडवांस दे दिया उसको। इट इज नॉट एडवांस, इट इज एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन, राइट? तो वो लोन के नेचर में आएगा एडवांस, एडवांसेस नहीं कहलाएगा, एडवांसेस फॉर गुड्स नहीं कहलाएगा। उन सब से रिलेटेड हमें क्या डिस्क्लोजर करने हैं? सबसे पहले देखते हैं कारों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। Whether the company has taken any funds from an entity or person on account of or to meet the obligation of its subsidiary, associates or joint venture, if so, details thereof with the nature of such transaction and amount in each case. अगर किसी कंपनी ने कोई फंड लिए हैं किसी एंटिटी से या किसी पर्सन से टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ द सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट, तो उसका डिटेल्स, नेचर जो है वो आपको कारों के अंदर रिपोर्ट करना है। Whether the company has raised loan during the year, अगर यहाँ पे फंड्स की बात हो रही है, that could be in form of capital also, and यहाँ पर हो रही है लोन्स की रिलेशन में। Where the company has raised loans during the year on the, this is on the pledge of securities. यहाँ पर pledge of securities नहीं है, यहाँ पर to meet the obligation of subsidiaries है। यहाँ पर है to, अगर आपने securities, subsidiary, joint venture और associate की प्लेज करके कोई लोन रेस किया है तो वो रिपोर्ट करना है आपको। एंड अगर कुछ इसमें डिफॉल्ट हो गया तो वो तो आपको रिपोर्ट करना ही नहीं केस। ठीक है सर, ये तो हमारे को कारों में रिपोर्ट करना है। कारों में कैसे रिपोर्ट करेंगे, उसके लिए उन्होंने कहा शेड्यूल 3 में आ जाते हैं। शेड्यूल 3 में आपको क्या डिस्क्लोज करना है सर? डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ borrowed funds and share premium shall be provided in respect of transaction where an entity has provided any advance, loan or invested funds to any other person or entity or entities including foreign entities. आपने किसी एंटिटी में को एडवांस दिया, लोन दिया, एडवांस कौन सा दिया? एडवांस, if the entity has given any advance loan or एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, वो भी सारे के सारे इसके अंदर कवर होंगे। और इन्वेस्टेड फंड्स टू एनी अदर पर्सन और एंटिटी और एंटिटीज इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज, वो सारे के सारे यहाँ पर कवर होंगे। प्लस ट्रांजैक्शन वेयर एन एंटिटी हैज रिसीव्ड एनी फंड, ये डिस्क्लोजर आपको देने हैं। लेकिन क्या क्या डिस्क्लोजर देना है वो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जो लोन दिया है उसके लिए क्या डिस्क्लोजर देना है? Where the company has advanced or loaned or invested funds, either borrowed funds or share premium or any other sources of funds. मतलब आपने अपने शेयर्स इश्यू करके कोई फंड रिसीव किया है, कोई शेयर प्रीमियम रिसीव किया है, या फिर borrowed funds लेके आपने कुछ लोन्स आगे दिए हैं या इन्वेस्टमेंट करी है टू एनी पर्सन, एंटिटी और एंटिटीज इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज। मतलब अगर आपने कोई एसपीवी बनाई है, उसके लिए किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू फंड्स रूट करे हैं, विद द अंडरस्टैंडिंग whether recorded in writing or otherwise that the intermediary shall directly or indirectly lend or invest in other person or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company, that means the ultimate beneficiary. आपने किसी इंटरमीडिएटरी को फंड दिए with a condition to lend or invest it in the other एंटिटी, तो आपको ये डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। कौन कौन से? डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड एडवांस एंड लोन्स और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी विद कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ईच एंटिटी, राइट? एसपी वाइज आपको अमाउंट देना है, डिटेल्स। फर्दर उस एंटिटी ने जिसको आपने फंड दिए हैं, उसने अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है उसको कौन सी डेट को अमाउंट ट्रांसफर करा, कितना अमाउंट ट्रांसफर करा, उसकी भी आपको डिटेल्स देनी है। अगर आपने कोई गारंटी दी है, date and amount of guarantee security provided to or on behalf of ultimate beneficiary, अगर ultimate beneficiary के behalf पे आपने कोई गारंटी भी दी है तो भी आपको डिस्क्लोज करना है। प्लस आपको एक नोट्स के अंदर एक स्टेटमेंट देनी है, एक डिक्लेरेशन देनी है कि आपने यू हैव declaration that relevant provisions of FEMA and Companies Act have been complied with.
कि फेमा के अगर फॉरेन एंटिटीज इन्वॉल्व हैं तो फेमा के और कंपनीज एक्ट के आपने सारे कंप्लायंसेस करे हैं फॉर सच ट्रांजैक्शंस। एंड फर्दर ये तो पॉजिटिव सेंस में है कि मैंने सारी ट्रांजैक्शंस करी हैं, द ट्रांजैक्शंस आर नॉट वायलेटिव ऑफ पीएमएलए। पीएमएलए मींस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी स्टडी करना पड़ेगा कि इसके वायलेटिव तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो आपने लोन दिए हैं या इन्वेस्टमेंट करी है। क्लियर है सर? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? आपने अगर बोरोड फंड से, शेयर प्रीमियम से या किसी भी ऐसी सोर्स से अगर किसी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करी है या लोन दिया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडिएटरी, तो आपको क्या डिस्क्लोज करना है? डेट एंड अमाउंट जब आपने इंटरमीडिएटरी को पे किया, इंटरमीडिएटरी ने अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है उसमें कब इन्वेस्टमेंट्स करी, वो डेट और उसका अमाउंट। अगर आपने कोई गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है अल्टीमेटरी बेनिफिशियरी को या उस अल्टीमेटरी बेनिफिशियरी के बिहाफ पे, वो आपको डिस्क्लोज करना है। प्लस एक डिक्लेरेशन देनी है कि प्रोविजंस ऑफ फेमा एंड कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस आपने करी है और द ट्रांजैक्शंस आर नॉट इन वायलेशन ऑफ पीएमएलए। ठीक है सर? इसके बेसिस पे आप कारों में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इसी का मिरर इम्पैक्ट। ये तो आपने कर दिया लोन गिवन। अब आपने लोन दिया है तो किसी ने रिसीव भी तो किया होगा ना, अब रेसिपिएंट को नहीं छोड़ना। तो इसका मिरर व्यू है ये। तो जिस कंपनी ने रिसीव किया है उसको भी सिमिलर डिस्क्लोजर्स जो है वो देने हैं, राइट? इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, दिस इज जस्ट द मिरर व्यू ऑफ व्हाट इज गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड, राइट? प्लस लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स। अगर आपने किसी डायरेक्टर को, किसी प्रमोटर को, किसी केएमपी को या किसी भी रिलेटेड एंटिटी को लोन दिया है या एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने डायरेक्टर को एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन दे दिया है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किसी रिलेटेड पार्टी को एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन दे दिया है तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अगर वो रीपेबल ऑन डिमांड है या फिर बिना किसी कंडीशन के या रीपेमेंट पीरियड के आपने दे दिया है। जनरली आपकी बुक्स में आ रहा होता है ना, आपको पता ही नहीं होता ये कब आएगा, यही नहीं पता उसको करंट दिखाएं या नॉन करंट दिखाएं। फिर कंपनी रेशियोस कैलकुलेट करती है, अच्छा इसको नॉन करंट कर दो, इसको करंट कर दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा अब कि भैया टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कुछ भी, रीपेमेंट पीरियड भी कुछ नहीं है, और अगर रीपेबल ऑन डिमांड है तो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना है? अमाउंट ऑफ लोन कितना था या फिर एडवांस कितना था जो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, और टोटल परसेंटेज कितना है आपका। ठीक है, इजी है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। पीएमएलए का आंसर मैं अभी थोड़ी देर में देता हूं सर, आपको अनम्यूट करेंगे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट इज अदर कंप्लायंसेस रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट। इसके में सबसे पहले आता है रिलेशनशिप विद स्टॉक ऑफ कंपनीज। जो जिस कंपनीज का नाम आपका अंडर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन 560 ऑफ द 1956 एक्ट स्टॉक ऑफ हो चुका है, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इट कुड बी आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप उस कंपनी से कुछ रिसीवेबल है, आपका उस कंपनी में कुछ पेबल है, या फिर जिस कंपनी का नेम स्टॉक ऑफ हो रखा है उसने आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, या किसी भी तरीके का आउटस्टैंडिंग बैलेंस स्पेसिफाई है, लोन है, आपने लोन दे रखा है, उन्होंने लोन दे रखा है, वो सारे के सारे नेचर आपको यहाँ डिस्क्लोज करना है, उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग जो है वो करना है, और रिलेशनशिप अगर कुछ है तो वो डिस्क्लोज करना है। क्या होता था सर, आप एक एंटिटी से पैसे जाते थे कोलकाता में, दूसरी एंटिटी से वापस आ जाते थे, आपको ना देने वाले का पता होता था ना लेने वाले का पता होता था। अब वो दोनों कंपनी का जो नाम है वो स्टॉक ऑफ हो चुका है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ हैंकी पैंकी है कंपनी की ट्रांजैक्शंस के अंदर, आपको इस सेक्शन के अंदर, आपको इस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अंदर डिस्क्लोज करना है, और अपने ऑडिट प्रोग्राम को सिमिलरली मॉडिफाई करके उसको उसकी चेकिंग करनी है, वेरीफाई करना है कि वेदर दीज आर जेन्युइन और नॉट, राइट?
इसके अलावा छोटे छोटे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जहां पर वेयर एनी चार्जेस और सेटिस्फेक्शन इज यस टू बी रजिस्टर्ड, अगर कोई चार्ज आपका अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ है विद आरओसी या फिर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड, तो उसकी डिटेल्स देनी है और उसका रीजन देना है। 30 दिन का टाइम होता है स्टैट्यूटरीली, अगर 30 दिन में नहीं हुआ तो आप रीजन दे दीजिए उसका और डिटेल्स दे दीजिए। कंप्लायंस विद द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ कंपनीज एक्ट में 2 लेयर्स अलाउड हैं, अगर 2 लेयर्स के बाद भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आपको sin of the company is beyond the specified limit and the relationship or extent of holding of the company in such downstream company shall be disclosed। ये सब disclosure requirement है। पुरानी कंपनीज होंगी, अब तो नहीं हो सकता पॉसिबल। नेक्स्ट, कंपनी ने कोई रिस्ट्रक्चरिंग करवाई है where any scheme of arrangement has been approved by the competent authority in terms of section 230 to 37 of the Companies Act 2013, the company shall disclose। सबसे पहले क्या डिस्क्लोज करना है? The effect of such scheme of arrangement has been accounted for in the books of account in accordance with the scheme। जो स्कीम अप्रूव हुई है उसी के अकॉर्डिंगली बुक्स में अकाउंटिंग हुई है एंड that is in accordance with accounting standards। पहले क्या होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ और बोलते थे, स्कीम कुछ और बोलती थी, दोनों का कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन अब आज की डेट में आप कोई भी एनसीएलटी में पिटीशन फाइल करते हैं या एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेते हैं कि जो प्रपोज ट्रीटमेंट है इन द स्कीम दैट इज एज पर दी कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो इफ देयर इज स्टिल एनी डेविएशन इज देयर इन दिस रिगार्ड, इट शैल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल एंड रीजन जो है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। Next is the presentation classification। कुछ माइनर चेंजेस हैं। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को पहले हम अदर लायबिलिटीज में दिखाते थे, अदर करंट लायबिलिटीज में, नाउ इट इज डिस्क्लोज्ड एज पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो अकॉर्डिंगली आपकी रेशियोज जो है वो सिमिलरली मॉडिफाई हो जाएंगी। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी ओमिटेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड इंसर्टेड अंडर द हेड अदर करंट नॉन करंट लायबिलिटीज। ये सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की चेंज है, प्रेजेंटेशन चेंज है, अप एंड डाउन, nothing much to be discussed in this। The next is unrecorded income। Unrecorded income से related what is there in the CARO में कहते हैं कि whether any transaction not recorded in the books of accounts have been surrendered, अगर सर्च एंड सीजर में कोई सरेंडर होता है, और disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act, if so whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of account during the year। नॉर्मली क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ कि आपने सर्च एंड सीजर में 200 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए, 200 करोड़ के ऊपर 60 करोड़ का टैक्स लग गया, या पेनल्टी लगा के आप ये लगा लीजिए कि 90 करोड़ का टैक्स लग गया। तो कंपनीज क्या अकाउंटिंग करती थी, सिर्फ 90 करोड़ को ही अकाउंट फॉर करती थी, बाकी पूरे को नहीं करती थी, 200 करोड़ को अकाउंटिंग नहीं करती थी। तो कारो में अब रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको ये बताना पड़ेगा कि पूरी जो इनकम सरेंडर करी है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करी है या नहीं करी है। दिस इज एज पर कारो। अब आप देखेंगे शेड्यूल 3 में क्या चेंजेस आए हैं। शेड्यूल 3 में कहते हैं and in additional information under general instruction for preparation of statement of profit and loss, this is relating to changes in statement of profit and loss, undisclosed income shall be included after item 8। The company shall give details of any transaction not recorded in the books of account that has been surrendered or disclosed as income during the year in tax assessment under the Income Tax Act, unless there is an immunity for disclosure। अगर कोई इम्यूनिटी है तो मत डिस्क्लोज कीजिएगा, अदरवाइज आपको पूरा डिस्क्लोज करना है कि कितनी आपने सरेंडर करी और या फिर कितनी आपने डिस्क्लोज करी एज इनकम। एंड also state whether the previously unrecorded income as well as related assets have been properly recorded in the books of account during the year। अगर कुछ assets भी हैं उससे related तो वो भी account for करें या नहीं करें। क्या होता था कि 200 करोड़ का कैश मिला, 200 करोड़ सरेंडर कर दिया, उसमें से 100 करोड़ रुपए टैक्स लग गया, तो क्या किया, 100 करोड़ की अकाउंटिंग करी, खत्म कर दिया, या अकाउंटिंग ही नहीं करी, जो चीज बाहर से मिली बाहर चली गई, बुक्स में अकाउंटिंग ही नहीं करी उसकी,
तो अब कारों में आपको रिपोर्ट करना है कि इनकम आपने अकाउंट फॉर करी है या नहीं करी है, और शेड्यूल 3 में ये डिस्क्लोज करना है कि अनरिकॉर्डेड इनकम को हम बुक्स में लेके आए हैं और उससे रिलेटेड जो एसेट्स थे उसकी भी हमने अकाउंटिंग करी है, राइट। नेक्स्ट है सर CSR से रिलेटेड पॉइंट। CSR से रिलेटेड 2 पॉइंट है, एक होता है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और एक होता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो अगर कोई अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, मतलब कोई कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट नहीं है, आप बेसिकली CSR एक्टिविटीज करते हैं बट कोई हॉस्पिटल नहीं बना रहे, कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो 12 महीने से ज्यादा की है, तो आपको क्या करना है, 6 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हुआ, जितना भी अमाउंट आपका अनस्पेंट है वो आपको एक गवर्नमेंट के फंड में स्पेसिफिक ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो गया ये सेक्शन। तो पिछले साल भी अगर आपने नवंबर में ऑडिट रिपोर्ट साइन करी है और किसी ने कोई फंड ट्रांसफर नहीं किया था, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए था कि उन्होंने वो फंड में बैलेंस ट्रांसफर कर दें CSR से रिलेटेड। रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी लास्ट ईयर, लेकिन अब इस साल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट भी आएगी। प्लस अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है मतलब आपके 3 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें आपने कहा कि स्कूल एंड हॉस्पिटल में बना रहा हूं, उस केस में क्या करना है सर, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में एक स्पेशल अकाउंट में जो अनस्पेंट अमाउंट है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। बेसिकली द पॉइंट इज, do not utilize the amount relating to CSR for your business purposes, keep it aside for CSR activities only. आप अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर 6 महीने के अंदर फंड में ट्रांसफर करना है, और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो जो भी अनस्पेंड अमाउंट है इट इज टू बी ट्रांसफर टू अ स्पेशल अकाउंट फॉर यूटिलाइजेशन इन फर्दर पीरियड। ठीक है सर, ये कारों में रिपोर्टिंग है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या डिस्क्लोज करना है, पहले जो डिस्क्लोज करते थे अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, amount of expenditure incurred during the year. The third one is shortfall at the end of the year. Now this is the new requirement, जो जितना भी blue font से लिखा है ये सारा का सारा new requirement है। Shortfall at the end of the year, first और 2 का difference ही होगा obviously. Then the total of the previous year shortfall, previous year का shortfall जो है उसका मिला के कितना बना, रीजंस देने हैं सर आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रीजन देने हैं कि आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मीट क्यों नहीं करी, आपने फंड्स को यूटिलाइज क्यों नहीं किया। देन द लास्ट इज द नेचर ऑफ द CSR एक्टिविटीज, जो आपने अंडरटेक करी हैं उनका नेचर ऑफ CSR एक्टिविटीज क्या क्या है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉइज के ऊपर फंड को यूटिलाइज करते हैं और उसको CSR क्वालिफाई करवा देते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा नेचर कौन सी CSR एक्टिविटी आपने अंडरटेक करी, प्लस डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल आपने किसी ट्रस्ट में कंट्रीब्यूशन किया है व्हिच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द कंपनी इन रिलेशन टू CSR एक्सपेंडिचर, तो आपको उसको डिस्क्लोज करना है। Where a provision is made with respect to liability incurred by entering into a contractual obligation, the movement in the provision, जो अगर आपने CSR से रिलेटेड कोई प्रोविजन बनाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 और इंड AS 37 इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डेंस में, तो आपको क्या करना है, एक तो प्रोविजन का अमाउंट डिस्क्लोज करना है प्लस मूवमेंट डिस्क्लोज करनी है। मूवमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS के अंदर डिफाइंड है, ओपनिंग कितना था उसमें से कितना एडिशन हुआ माइनस यूटिलाइजेशन एंड क्लोजिंग बैलेंस। So this is required to be disclosed under this CSR as per the schedule 3, जो कि पहले नहीं था अब है। ये एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है।
प्लस प्रोविजन की रिक्वायरमेंट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे थी, अब उन्होंने शेड्यूल 3 में भी इंक्लूड कर दिया उसको स्पेसिफिकली। एनी डाउट सो फार? नेक्स्ट आ जाते हैं सर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी वेयर द कंपनी हैज ट्रेडेड or invested in cryptocurrency or virtual currency during the financial year, the following shall be disclosed: profit or loss on transaction involving cryptocurrency or virtual currency, amount of currency held as at the reporting date पे कितनी आपने करेंसी हेल्ड कर रखी है, deposits or advances, ये इंपॉर्टेंट है, deposits or advances from any person for the purpose of trading or investing in cryptocurrency। अगर आपने किसी से डिपॉजिट या एडवांस लिया हुआ है विद फॉर द अल्टीमेट पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इट और ट्रेडिंग इन द क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, तो आपको ये भी डिस्क्लोज करना है, राइट। नेक्स्ट चेंज है रिलेटिंग टू राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में वो कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ राउंडिंग ऑफ फिगर्स अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स the total income of the company shall be considered as the basis instead of turnover। अभी जो हमारा शेड्यूल 3 है उसमें हम टर्नओवर के बेसिस पे राउंडिंग ऑफ करते हैं। नाउ दे आर सेइंग कि टोटल इनकम के बेसिस पे आपको कंसीडर करना है राउंडिंग ऑफ में, राइट। तो अगर लेस देन 100 करोड़ है टोटल इनकम, तो इस रेशियो में नियरेस्ट 100,000 लाख्स और मिलियंस और डेसिमल देयर ऑफ, और 100 करोड़ से ज्यादा है तो लैक्स, मिलियंस और करोड़ में कर सकते हैं आप। डिफरेंस क्या है टर्नओवर और टोटल इनकम में? टर्नओवर एज पर द कंपनीज एक्ट मींस द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द सेल, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और ऑन अकाउंट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड और बोथ बाय अ कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और अदर इनकम क्या कहता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जो अदर इनकम है वो भी इंक्लूड करते हैं, और एज पर अमेंडमेंट टोटल इनकम के बेस पे आपको राउंडिंग ऑफ को करना है। डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल करेंसी हैज नॉट बीन नोटिफाइड बाय द आरबीआई टिल डेट, हाउ टू कवर दैट रिपोर्टिंग। सर जितना भी आपका वर्चुअल एसेट्स हैं, चाहे वो करेंसी हो चाहे डिजिटल एसेट हो, आप सबके ऊपर डिस्क्लोजर दे दो। चाहे एनएफटीज हो, चाहे कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, चाहे टोकन्स के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी हो या ट्रेडिंग कर रखी हो, आप सबको डिस्क्लोज कर दो ना सर। द आइडिया क्या है इस डिस्क्लोजर के पीछे? दीज आर वल्नरेबल एसेट्स, राइट। तो दीज आर एसेट्स व्हिच वेरी डिफरेंटली ऑन अ टाइम बेसिस, जिनकी वैल्यू जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, एंड दे डज नॉट हैव एनी अंडरलाइंग एसेट। तो इसलिए इससे रिलेटेड आपके पास जो भी कोई टोकन है, कोई एनएफटी है, कोई वर्चुअल करेंसी है, आप सबका डिस्क्लोजर दे दो, राइट। तो ये तो हमारा कंप्लीशन हो गया शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट्स। अब मैं इसमें आपको ये बताता हूँ कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द करंट ईयर, लेकिन हर जो भी अमेंडमेंट है उसमें लास्ट ईयर का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इज अ मस्ट, क्योंकि प्रीवियस ईयर फिगर्स भी हम देते हैं। तो जो 31 मार्च 21 क्लोज हो गया है उससे रिलेटेड आपको जो भी रेशियोज एंड जो भी आपको वर्क करना है वो आप अभी कर लो, सो दैट कि मार्च तक अगर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी करनी है जिससे कि आपकी पोजीशन बेटर हो सकती है, जैसे कि स्टॉक पोजीशन या रेशियोज या कुछ भी बेटर हो सकती है बेस्ड अपॉन दी वर्किंग्स, तो आप उसमें अभी भी यू स्टिल हैव टाइम टू डू सर्टेन ट्रांजैक्शंस। 31 मार्च के बाद कोई टाइम नहीं मिलेगा आपको, और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है उसको आप आज ही बना के रख लीजिए, अदरवाइज लास्ट में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, so it will be a tedious job at the end of the year. Now if you have any questions relating to this, I am ready to answer. आप Q&A में भी डाल सकते हैं and you can type it in the chat box also. Any questions relating to schedule 3?
जो हमने रेशियोज डिस्कस करी थी दैट इज रिलेटिंग टू आई गैप ओनली। इंडेस से रिलेटेड जो फर्दर कुछ 2-4 रेशियोज हैं वो अलग से डिस्क्लोज करनी है, और एनबीएफसीज की रेशियोज थोड़ी सी ऐड हो जाएंगी। तो एनबीएफसीज के केस में आप देखेंगे तो देयर वुड बी फ्यू ratios that will be included in addition to what we have discussed today. Yeah, I'll be sharing my PPT with you all, plus I am also sharing my website जहाँ पे मेरे अभी तक के जितने भी सेशन हुए हैं उन सब की PPTs अवेलेबल हैं। मैं PPT भी हेमंत जी से शेयर कर दूंगा, he will distribute। मैं अभी जो है आपको चैट बॉक्स में ईमेल अपना वेबसाइट की डिटेल दे देता हूँ। आप वेबसाइट से मेरी सारी पीपीटीज शेड्यूल 3 से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड और अदर वैल्यूएशन रिलेटेड टॉपिक से आप यू कैन डाउनलोड विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी लॉगिन एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। अभी कोई आपकी क्वेरी हो तो प्लीज आप, आई एम रेडी टू आंसर, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। आपने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था, Section 3 of the PMLA, which starts with whoever is very wide, and how to safeguard us as auditor for such disclosure. सर मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर देने हैं पीएमएल, हम इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं रहे, तो वी कैन ऑलवेज टेक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, एंड ब्रॉडली वी कैन से कि अगर फेमा की कंप्लायंसेस हो रखी हैं, कंपनीज एक्ट की कंप्लायंसेस हो रखी हैं। अब जो इनकम टैक्स में आपका रूल आया है कि सोर्स भी आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर आपने वो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करे हुए हैं, देन आई डोंट थिंक सो कि आपको अपने आप को सेफगार्ड करने की जरूरत है। यू हैव ऑलरेडी सेफगार्डेड योरसेल्फ बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हर ऑडिटर को पता होता है कि कौन सी कंपनी में कौन सी ट्रांजैक्शन किस तरीके से की गई है और उसके क्या रिपरकशन होंगे। ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है जो अपने ऑडिटर से छुपा जाए, तो छुपा भी दे और पता भी ना चले। अगर आपने ढंग से ऑडिट किया है तो यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि क्या हैंकी बैंकी था। ठीक है सर, हेमंत जी। थैंक यू। मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट है। आई एम स्टिल ओपन फॉर क्वेरीज अगर कोई है तो। रिलेशनशिप विद स्टॉक ऑफ कंपनीज एंड ट्रांजैक्शंस, सर इसमें हमें डिस्क्लोजर देने हैं। हाउ टू वैलिडेट दोस, अच्छा ये ठीक है सर। आपने अगर किसी एंटिटी से लोन लिया हुआ है या कंपनी ने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, आप उन सबको एमसीए के पोर्टल से वेरीफाई करिए कि किसी का नाम स्ट्रक ऑफ तो नहीं हो गया। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एक एडिशनल कंफर्ट है बट नॉट एन ऑडिट टूल। आप ऑडिट में आप वेरीफाई कीजिए। वैसे भी आप देखेंगे जब आप इन्वेस्टमेंट्स को तो वेरीफाई करते ही हैं, 31 मार्च को आपको उनकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन करते हैं, तो आप चेक करते हैं मार्केट में अगर कोटेड है तो। अनकोटेड है तो यू ट्राई टू गेट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप एमसीए के पोर्टल पे चेक कर सकते हैं कि वो कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती। इन्वेस्टमेंट्स वाला हो जाएगा, जिन कंपनियों ने आप में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं वो भी हो जाएगा। सिर्फ बच जाता है रिसीवेबल एंड पेबल्स, जो कि वैलिडेट करना इतना इजी नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ वेंडर्स बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके बहुत ज्यादा होते हैं। आप हर कंपनी को यू कैन नॉट वैलिडेट। तो आप क्या करेंगे सर, जो आप अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं ना, वैसे तो आप नॉर्मली जब ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल को बैलेंस कंफर्मेशन लेटर भेजेंगे, अगर आप 100% को नहीं भेजते तो जिन जिन को आप भेजते हो उन सबको आप वैलिडेट कर लीजिए एमसीए के पोर्टल पे जाके कि वो स्टक ऑफ तो नहीं हो गई। इसके अलावा कोई और एमआरएल कांट बी अ फुल, वो तो हो ही नहीं सकता सर, वो तो एक एडिशनल सेफगार्ड है, बस एक एडिशनल कंफर्ट आपको दे सकता है, बट जो प्राइमरली जो ड्यूटी है एज एन ऑडिटर वो तो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। और आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा बैलेंस कंफर्मेशन का, तो दैट इज आल्सो एन अनदर चैलेंज। तो हम यही कहते हैं कि आप अपना एक सैंपल मेटेलिटी के बेसिस पे अपना एक सैंपल डिफाइन कीजिए और जो आपने सैंपल डिफाइन करा है उसको आप खुद चेक कर लीजिए।
तो सैम्पलिंग में अगर आपका पता लग जाता है कि भाई 10 में से एक ने भी नहीं किया, तो यू कैन रिलाई ऑन दैट। बाकी तो सर मैनेजमेंट की कॉल है। मैनेजमेंट को पता चलेगा कि मैंने इस वेंडर से इतने पैसे, इतने कस्टमर से इतने पैसे लेने थे, मैंने उनको लेटर लिखा, वो लेटर पहुंचा नहीं, मैंने वेरिफिकेशन किया, कंपनी स्टॉक ऑफ हो चुकी है, तो दैट हैज टू बी रिपोर्टेड। ठीक है सर। सर अभी तक तो ऐसा कोई टूल है नहीं, बट अगर कोई होगा तो आई विल गेट बैक टू यू। अभी तक तो ऐसा कोई टूल नहीं है, इंडिविजुअल कंपनी की वेरिफिकेशन ही कर सकते। ठीक है हेमंत जी। ठीक है सर, आई थिंक देयर इज नो क्वेरी इन द चैट बॉक्स। मैं आपको सर पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप सबको सर्कुलेट कीजिएगा। अगर किसी को कोई क्वेरी होगी तो इवन देन आई एम रेडी टू आंसर। कोई मेरे को ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें। एंड आई थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर अ पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीतीश भाई, थैंक यू भाई। once again for coming. I think you are coming second time in our study circle. So, it is very nice that you have always been available to for your service in our study circle, and I hope this will continue in future also. And you have thanks for such a wonderful presentation and knowledge sharing. I think all the participants who are attending today will have something with this in their company schedules, balance sheet, and all other things. So thank you Nitish bhai. Thank you Once sir. again, Thank you. Thank you. for giving me. Thank you.